گالیاں نکالتے ہیں وہ نہیں آپ کو نظر آتا شیر علی فاطمہ بنت اسد کی توہین کی گئی ہے رسول اللہ کی ماں کی، تو آگے کیا ہے؟ پیچھے جی ابو جہل بندر ایک آپ بنایا کو ہوا وہ ہے، لوگ آگے نہیں فاطمہ نظر بنت آتے. اسد. زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، میرے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں نا، تو اس سے آگے نہ میں کچھ تقیہ کروں گا اور نہ میں اس کے آگے خاموشی رہ سکتا ہوں. مرنا بھی ہے ہم نے. علی شیر گجر. اتنی توہین میں نے زندگی میں نہیں دیکھی جتنی یہ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو رائے ہدایت پہ لے کے آئے. مجھے تو کبھی دقت ہوتی نہیں ہے، احمدی حضرات سے بات ہوتی ہے، ایتھیس سے بات ہوتی ہے، کرسچنوں سے، ہندوؤں سے. انتہائی بدتمیز انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا اپنی زندگی میں، نہ میں خود ہی کرتا ہوں. لیکن یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ آ کے احمدیوں کو بھی گالیاں دے رہے تھے، ہمیں شیعوں کو بھی دے رہے تھے. جب تو آپ کو کتنے لوگ پتہ قتل بھی کریں گے ہے آپ؟ جعفری بھائی کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا، کوئی طریقہ ان کو بات کرنے کا نہیں ہے، آپ نہ جی کیا کریں ان سے بات. آپ ہم نے یہاں پہ بات یہ کی نہیں، غلاظت بکنے ہم آ بات جائیں، کر رہے آپ تھے. وہاں سے نکل جایا کریں. بزاد علی بھائی ہم بات کر رہے تھے کوئی اور، یہ بیچ میں مولا ٹپکے ہیں گواہ ہے، اور مولا آپ کے گواہ ہے. انہوں نے. طلعت صاحب آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جی آپ کو جی پتہ ہے ہم آپ کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں. دوسرے یار یہ یہ علیم بھائی ہیں. جعفری بھائی رو مت. علیم بھائی بات یہ ہے، خدا کی قسم یہ جو رانا تیمور بیٹھا ہوا تھا، میں اللہ کو حاضر ناظر بنا کر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے منہ سے مولا علی علیہ السلام اور ان کی ماں کے لیے نعوذ ایسی باللہ من ایسی ذالک. غلیظ ترین گالیاں سنی ہیں استغفر اللہ. کہ جن کی اصل کوئی گستاخی تو یہ انتہا ہی کرتے نہیں ہیں، ہے. اصل گستاخی تو یہ کرتے ہیں. نہیں نہیں علیم صاحب، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں، میوٹ پہ بیٹھا ہوا تھا. یہ ان کو نبی کا لباس یاد ہے، ان کو نبی کا وہ جگر کا ٹکڑا نہیں یاد جنہوں نے نبی نے کہا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. ان کو جی ہاں نبی کا لباس جی ہاں یاد رہا ہے، بالکل ان کو وہ بالکل. جگر کا ٹکڑا یاد نہیں رہا، یار ان کو وہ یاد نہیں رہا. میں وہ گردہ نہیں، میں تصور نہیں کر سکتا جو بندہ یزید کی حمایت کرے، تصور سے باہر بھائی ہے. جان چل یہ جو کل یہ ابھی ظفر شاہ جی جو آئیڈی آئی ہوئی تھی، انہوں نے قرآنس کی بروڈ کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ باغ فدت جیسا واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا، شیعوں نے اپنے سے گاڑ لیا ہوا ہے. اور اس بندے کو میں نے کہا کہ اوے شیعوں کا عقیدہ ہی اس چیز پہ کھڑا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہوئی ہی نہیں. ہم بالکل کرتے ہیں لوگ نے انہوں نے پھر وڈے وڈیریاں نو گالاں نہ کڈیے تے اور کی انہاں دی پوجا کریے. کیا بکریاں گلا کرتے ہو یار ریئیکشن میں تسی. ریئیکشن دیتے ہیں، لیکن میں تو آج میرا دماغ گھوم گیا ہے. میں باخدا میرا بلڈ پریشر ہائی یار ہو گیا ہے. بلیو میں میں کسی نہیں بندے آتی کے منہ چیز. سے یہ سنوں کہ علیم یزید وہ صاحب کلمہ علیم صاحب پڑھا رہے ہیں اتنا اور بلڈ یزید بری اللہ. پریشر، اتنا بلڈ پریشر، میری بات سنیں، اتنا بلڈ پریشر ہائی نہ کریں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہم تو مانتے ہیں کہ وہ علیم لعنتی ہے، یزید نیچے لعنتی ہے، اتار دیا بھائی. زندگی صاحب قتل ہے وہ. آپ لیکن اپنی بروڈ لگائیں جب علیم ایک صاحب. منٹ، ایک منٹ یار، مجھے آپ ان بات سے پوری کرنے تو ان مجھے کے تو جواب کر دیتے ہو آپ لوگ. شہزاد ایک منٹ چپ کر جائے یار، علی بات تو شیر بھائی کرنے کو دو مجھے بولنے دیں، مکمل. بھائی کو بولنے دیں، بولنے دیں. کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، عثمان کون نکالتا ہے وہ گالیاں؟ یہ یقین مانے کہ اگر یہ کام چھوڑ دینا یہ شیعہ حضرات، تو کوئی بندہ کسی کو برا نہیں کہتا. چل علی شیر آپ گجر ان پہ میرا بائٹ پہ سوال ہے جائیں. تیرے نال، میری ایک میرا منٹ سوال ہے دادا غلط تیرے میری نال. غلط بات ہے. سن. نہیں 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 دادا، نہیں ایک میرا منٹ سوال ایک ہے. منٹ دادا، ایک منٹ دادا، دادا ایک تو منٹ سن میں کے اس کو بڑا جواب دے پاگل دوں. ہے، ایک جتنی منٹ، گالیاں تو نکالتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں نکالتا. ایک یار میری منٹ بات دادا. علیم صاحب نہیں پوری ہونے دیتے. علیم صاحب بات تو پوری ہونے دیں نہیں یار. آپ نے بات کی ہے نا، نہیں نہیں، نہیں پوری آپ کرنے دیں صرف علی ایک شیر بھائی سائڈ کو. دیکھ رہے ہیں. بات علی مکمل بھائی تو علی ہونے شیر دو بھائی نا. کو بولنے دیں، علی شیر بھائی کو چلے مکمل کرنے بولے، دیں. آپ میری پوری بات پوری کریں. ہونے دو ٹھیک ہے، پہلے. پوری. مکمل کر لینے دیں، پھر آپ بول لیں. مکمل کر لینے دیں، مہربانی کریں. جی کہ علی شیر بھائی. جب حضرت سید، جب شیخین کے بارے میں باتیں ہوتی ہے اور ابھی تک ان کی لائیووں پہ ان کے جو لوگ ہیں جی ان کا اسلام ثابت کرو. یار اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو 24 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھتے رہے ان کے پیچھے، اگر وہ کافر تھے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ ان بڑوں کا معاملہ ہے. اور ان لوگوں کے اندر اتنی حیا نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات جن کی قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ وہ امہات المومنین ہیں، اور ان کے بارے میں یہ گالیاں نکالنا شروع کر دے. کیا اس سے ہمارے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ کیا امام حسین صرف ان کے امام ہیں؟ وہ سب مسلمانوں کے امام ہیں. جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، وہ سب کے امام ہیں. ہم سب ان کو مانتے ہیں، وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ واضح طور پر ان کے لیے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موجود ہے. لیکن ہم تو مانتے ہیں ان کو. لیکن اس کے باوجود کیا ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ حضرت امام حسین معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ بات غلط کی ہو؟ کسی نے اہل بیت اطہار کے کسی امام کے بارے میں کوئی بات کی ہو؟ تو ہمارا ایمان
हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा अव्वल है, खलीफा दोम उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है, उम्महातुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा। यार मुझे ये बताओ कि ये किस चक्कर में उनको गालियां निकालते हैं? क्या अली सिर्फ 11 बीवियां थी और उनका भी नाम लिया क्या गया। इमाम हुसैन इनके हैं? क्या इमाम हसन इनके हैं? इन्होंने ठेका उठाया हुआ अली भाई तस्वीर आप जी किसकी जी दिखा रहे हैं? हमारे एक मिनट सैयद मुझे अलीम भाई मुझे इसको जवाब देने दें कि जी हमारे ये हम आपको वो ब्रोडे बताते हैं, हम आपको वो बंदे बताते हैं, उन बंदों के पास जाएं आप, उन बंदों के पास बैठे आप, उन बंदों के पास जाएं, उनके पास बैठे। अगर वो अभी बात सुने ना, अभी सुन ले, आपकी बात हमने सुन ली। उनके पास जाएं और उनके पास बैठ के आप सिर्फ ये चीज़ जाके देखें कि वो मौला अलैहिस्सलाम और उनके जो भी औलाद हैं उनको गालियाँ ना देते हो। फिर बात सुने पहले, अभी बीच में ना बोले ना। देखें अभी उस दिन ये लोग आए अलीम भाई, उस दिन ये लोग दादा एक मिनट अली शेर गुजर तू एक मिनट अली शेर गुजर मेरी बात सुन। एक बंदा तू बोलेगा, गल कही एक बंदा बोलेगा, ये एक बंदा दादा की आईडी बोलेगा। पे सबसे ज्यादा ये गालियां निकालते हैं। एक जहां बंदा जाता बात है, करेगा। जहां- अलीशर भाई आपने बात करेगा, एक बंदा बात करेगा। कौन बात करेगा? ये अलीम भाई बेजाद रुके। कौन बंदा बात करेगा अभी आप में से? एक बंदा बात करेगा। मैं अली शेर गुजर को जवाब देना चाहता हूँ। ये इसने कहा है कि मैं बात कर लेता हूँ। एक मिनट वो लोग आज गालियां निकालने लगे हैं। अली शेर गुजर, आपको पता है मैं आपके साथ मेरी वाकफियत बनी थी एक प्रोड पे, मैंने आपको समझाया था, आके याद होगा। और मैं आपका वाकफ बना था बाली की प्रोड पे, उधर आप उससे डिबेट करने गए थे, याद आया? उसके बाद मैं इन्हीं सारे ग्रुपों में बैठता रहा हूं। जितनी तौहीन इन्होंने पहली मरहम से लेकर 10वीं मरहम तक की है, खुदा जानता है शियों ने एक ब्रोड नहीं चलाई। इन्होंने उनको चंगा रगड़ा लगाया। अब मुझे बताओ कि तुम कौन सी बात कर रहे हो कि उन्होंने अभी शुरू किया? वो बहुत देर से कर रहे हैं, शियों ने अभी शुरू किया। सबसे पहले आप अपनी किताब देखो कि सबसे पहले उन पर कुफर के फतवे कौन सी किताबों में हैं। सबसे पहले ये बातें कहाँ से शुरू हुई हैं? मैं आपको हकीकत बताऊं कि यार अली शेर गुजर साडा दीन ही उधर खड़ा है, और कर साडा दीन ही उधर खड़ा है। आकर फिर जो है ना वो ताड़ियां किताबां दे विच लिखा होया है। शुरू किए, वरना पहले नहीं था ये। अभी भी आपका अला हसन यारी जो है ना वो बैठा होता है लाइव पे और बैठ के वो कहता है जी अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक का ईमान साबित। वो झूठ बोलता है, क्या वो झूठ बोलता है। ये बताओ कि क्या आप लोग ईमान के ठेकेदार हो? वो झूठ बोलता है। सिद्दीक के और उमर फारूक के और हजरत आयशा सिद्दीका के रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के। ये बात ना करो। जाहिर बात है। मुझे अब आप बताओ, आप लोगों ने भी तो दीन में उनको ऐसे रखा हुआ है कि उनको मानोगे तो फिर जन्नत में जाओगे, उनको मानोगे देखें- तो जन्नत में नहीं जाओगे। देखें, गुजारिश सुन लीजिए अली असगर, गुजारिश सुन लीजिए। थोड़ी देर पहले जो है ना वो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गाली निकाली थी जब नीचे उतारा। एक मिनट अली शेर, बात सुने। आपस में हो रही है जो तो उनका क्या बात कसूर है ना क्यों गाली निकाली आपने उनको? जो बात है ना हजरत अल्लामा शेख अली यारी साहब की, तो जिनके गुजारिश सुन बारे में लीजिए। कुरान की नस्से कती मौजूद है, अगर कोई उन पर लानत भेजता यार है, सूरत रीम सारी मजम्मत से भरी पड़ी है, ऐसी बात ना करें। आपको उतना इल्म नहीं है, बात सुन लीजिए नहीं पहले, ना अली बड़ी शेर। बड़ी बड़ी ये शिया नहीं, का तो बात सुन लीजिए। शिया शुरू हुए हैं और यार शियों ने खुद तो कुरान पाक में ना लिखा मेरा भाई। कुछ शिया हैं जो हर चीज को समझते हैं, लेकिन कुछ और यार अली शेर गुजर तेरे वास्ते जरूरी है, सहाबा ने तू भाई आप भाई हैं। साडे वास्ते नहीं जरूरी। आप हमारे भाई हैं, जरा तमीज से बैठ के कोई अगर बात करनी है तो हम कर लेंगे। बाकी ये है कि इसको खत्म करने नहीं की कोशिश यार, करें। ये ना कहो आप कि ये लोग ऐसा करते हैं, सुन्नी ये करते हैं। भाई सुन्नी अहले हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत और अकीदत के कायल है। अच्छा चलिए बिल्कुल बात सुनिए अब ठीक हो गया। हम यजीद की हमने बिल्कुल दिफा नहीं कर रहे। एक मिनट मुझे दे दें। मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। वो बात ये है कि कुछ दिन पहले एक मिनट अली भाई, एक मिनट थोड़ा सांस लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले इनकी आपस में बातें हुई हैं दोनों तरफ से। सब ने बैठ के बातें की हैं कि हर चीज़ बंद हो जाती है दोनों तरफ से, कोई किसी के ऊपर ना लान तान करेगा ना गालम गलोच करेगा।
सारी चीज़ें जब हाँ हो गई है, उसके बाद दूसरे दिन पे आए हैं। दूसरे दिन पे इन्होंने कहा है कि भाई अभी तुम लोगों ने यजीद को भी कुछ नहीं कहना है, यजीद को भी आपके कुछ नहीं स्क्वाड्रन कहो, से मैंने बाकी पर्सनली सबको तो रब्ता छोड़ किया था। दिया, सबको रोकने छोड़ के लिए। दिया आपने, सबको छोड़ दिया है, कोई बात नहीं। अब यजीद को भी छोड़ दो, जो यजीद को गाली देगा हम सारे 12 के 12 इमामों को गालियां नहीं, देंगे, यार, उनकी आप माओं को गालियां देंगे, सबको गालियां देंगे। क्यों? आप यजीद का किसका? कंपैरिजन अबू बकर उमर फारूक से करते हो कि अगर कोई बंदा वो भाई वो लोग करते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर तुम लोग नहीं बाज आते हो तो फिर यजीद के साथ इन सबको भी गालियां दो, हम नहीं बाज आएंगे, यजीद को नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, यजीद को एक लफ्ज तक ना बोलो, लानत भी ना भेजो। आप भाई उनका ईमान कुछ नहीं बोलता। आप एक मिनट मुझे ये बताएं कि अबू बकर अफजल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अफजल है, आयशा अफजल है कि बीबी पाक फातिमातुल ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल है? कौन अफजल है? के लिहाज से अफजल कौन है? किस तरह अफजल है? एक दलील पेश करो अबू बकर की फजीलत पे, उसकी अफजलियत पे एक दलील मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में पेश करो। मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ पे उन पे ईमान लाऊंगा। एक दलील पेश मुझे करो। ये बताओ, एक मिनट, क्या हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद 24 साल तक हजरत अली रदी अल्लाह ताला ने कभी अलहदा नमाज पढ़ी जमात के अलावा? ओ भाई साहब, अभी आपने यार, ये फजीलत की क्या बात की है ना, अच्छा, जबकि छोड़ दें यार, बात हर छोड़ दें। एक ठीक बंदे हो को गया। जाफरी भाई, शेर भाई, अलीम भाई बैठे हुए, अलीम भाई ना इनकी साइड से है ना हमारी साइड से। अलीम भाई आप म्यूट बता के आप फकत सिर्फ इतनी गवाही दे दें कि आप मुझे ये बताएं कि अगर अबू बकर और मौला अली अलैहिस्सलाम को देखा जाए तो फजीलत किसकी ज्यादा है? खुद के ईमान की बात करें आप। हजरत अली अहले बैत में मकाम सबसे देख बड़ा जो है ना ये ना मेरी साइड के है ना आपकी साइड के है, उन्होंने भी गवाही दे दी है। अभी बाहर वाला बंदा भी गवाही दे रहा है, उनको भी पता है, बस इनके दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। अलीम भाई इनके दिल में सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए बुग़्ज़। रुके, एक मिनट बात सुनो, रसूल करीम ने फरमाया है जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सिर्फ मेरी 2 मिनट बात बेशक। सुनो, मैं चला जाऊंगा फिर। और मेरी 2 मिनट मुनाफिक और बात मोमिन आपकी की सुन रहे हैं पहचान करनी है आपने तो एक नारा काफी है, लगाओ मिलके बेशक। सब नारा अली मौला अली मौला। यहाँ से अली मौला, निकल अली मुनाफिक अलीम साहब, अब फिर आप गलत बात कर रहे हैं। आपका इन चीजों से कोई अभी दरमियान में अली बोलने का से कोई हक मोहब्बत नहीं है। करने के लिए हज़रत कोई अली वजह करमुल्लाह नहीं वजहुल चाहिए। करीम सुने, अली से मोहब्बत करने के लिए मुझे कोई वजह इस्लाम ने फरमाया, देखें ये तो लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान है मौला अली पर मोहब्बत। बस यही ईमान है, यही ईमान यही है बस। करने के लिए ना मुझे अहमदिया जमात चाहिए, ना मुझे मेरे वालदैन की तरबियत चाहिए। देखो एक काया बगाल तो देखो इमाम गाली दे रहा थले। मौला अली से मोहब्बत है बस। आप सुने, आप तो फैन है, आप खामोश होकर सुने, पार्टी ना बने आप। मैं ये कहता हूँ कि यार हज़रत अली शेर गुजर उन्हें भी कपड़ा यार, कीता अपनी दसिया मेरा प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। मोहब्बत का इजहार मोहब्बत का इजहार अली करमुल्लाह वजहुल मिर्चा करीम लग गई हैं क्यों कादियानी क्रिश्चियन भी प्यार करते हैं हजरत अली नाल, हर इंसान हजरत अली नाल प्यार करता है। एक तुसी लानती हो जिहड़ा हजरत अली दी शान कढाते हो। नौजवानों के सरदार हैं, हजरत अली सरदार हैं, काफिर कौन है? जन्नती मर्दों के सरदार हैं हजरत अली करमुल्लाह वजहुल आज करीम। फिर इस ये सबसे बड़ी फजीलत है। भाई हसन हुसैन जल्दी हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को इमाम मानकर उनके पीछे इनकी इक्तदा में नमाजें पढ़ी जामे मस्जिद ओ में। भाई असलियत अच्छा, चलें, ठीक है भैया। करवाया गया एवें ना बड़ी घट क्या बनाया हजरत अली कर। इतने कमजोर थे? और क्या हजरत अली कमजोर इतने की कमजोर थे? उस टाइम मुसलमान भी ताजा तेरे क्या वर्गे अली होए इतने सन कमजोर थे? जो लड़ पैंदे ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ। तो इमाम अपने हिसाब हुसैन ला लो। मेरी और बात दादा जी ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੇ ਹੋਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਠਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? अब मैनू ये दसो ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੰਗੇ ਹੋਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੱਠਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? जंग खैबर में भी भाग गए। बात घर में सबसे बात एक पहले करके करो, पहुंचने वाले अबू बकर थे मेरे बात अबू एक जंग करके से। करो, बात एक तुम्हारा बुग़्ज़ सामने आ रहा है जी असल में। बुगज हदीसा बात जाके ये है कि हजरत अगर देखें, हजरत अली अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मिनट लोगों के साथ अली असगर तो वहां क्यों जंग करने गए थे?
علی شیر بات سنیں، علی شیر بات سنیں، उनको नहीं पता था علی شیر بات سنیں، او علی شیر بات سن لے بھائی، اور بھائی او بھائی جعفری آپ صاحب کے کو جو امام آپ ہیں، کو دینا- ٹھیک ہے، اور جواب ہی دے رہا ہوں، بغض کا بھی جس کے متعلق ذکر ہے وہ مولا علی کے متعلق ہی ہے کہ ان سے بغض مت کرنا، باقی کسی کا نام نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اصحاب رسول کا بغض بھرا ہوا ہے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر۔ آپ اللہ صرف اکبر بغض یا بھائی علی شیر کو جڑے آپ صلی اللہ میری گل سن میری گل سن جڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکواس بند کر دے اپنی۔ اچھے صحابہ ہے نا اوے لانتی تو تمیز ایڈا نہ گل مچھا کر، نو وٹ دے نہ چوکری خودی چٹ چپ کر کے بکواس بیٹھ اپنی بند کر اپنی۔ اے چپ کر کے بیٹھ میں نے میری تمیز نہ گل کرنی ہے سن کرنی میری گل تو سن لے گجر صاحب گویا سانبو جا کے چھڑ دیو تسی تہاڈا کی کام ہے انساناں دا، ٹک ٹاک تسی جانور سانبو جا کے۔ پوسٹر لگے ہیں سب پتہ ہے سب واہ گجر صاحب اور تسی جو بغیرتا نہیں لائے نا، اڈا نہ بڑھیا کر اڈا نہ بڑھیا کر مسلمان دی تو عمری دین دسنا میں کہ عمری دین کنجدا تو دسنا میں ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਗਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। تے ہن جیڑا بندہ یزید نو آ کے امام آندا ہوئے پیا تے پھر بھرا تو کی اونوں آکھنا؟ یہ مسلمانوں کے مخالف کہتے ہیں جی مسلمانوں سے تو احمدی افضل ہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، ہر بندہ لعنت ہے تھوڑے جمن تے۔ انسانیت کی قدر کرتا ہے، ہر بندہ کوئی افضل ہے۔ انسانیت ہے، سب سے مسلمان پہلے اسلام ہے، سب سے کم پہلے از کم احمدی گالی نہیں دیتے، گالی کم از کم احمدی نہیں دیتے اور یہ نہیں کہتے کہ یزید جنتی ہے۔ حضور نبی او احمدی یزید نو امام نہیں مانتے، او پلیالو کا گجر صاحب، یزید لانتی ہے، صبح پلیالو کا شام لگاتار یزید لعنت ہے صبح شام۔ لعنت اس پر لعنت ہے یزید پر، ہم بھی بھیجتے ہیں لعنت، لیکن جو ابو بکر صدیق عمر فاروق پر لعنت بھیجے ہم اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ بندہ امام مولانا کہہ رہا جنتی ہے وہ، حضرت افضل سلام اللہ علیہ یزید ولیو کا کہہ رہا تھا لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ تب کا علی شیر علی شیر ابھی میں نے روایت دے دی نا تو بہت پرابلم ہو تھوڑی جائے گی سانس میرا لے لو، بھائی۔ تھوڑا سکون لے لو، اس سے ہی بس شروع ہو جاتے ہو۔ اگر بات کرتے ہو نہیں اگر بات کرتے ہو احمدیوں کی بات کرتے ہو نا تو یہ طلعت عوان صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں علیم بھائی کو اتنا نہیں جانتا میں جتنا طلعت کو جانتا ہوں، میں طلعت کی بات کر رہا ہوں۔ طلعت صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، پر بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خود کو ان کے ساتھ مت جوڑو۔ یہ جو لوگ جیسے مولا کو مانتے اور محمد والے محمد کے گھرانے کو مانتے ہیں، تم لوگوں کے دل میں رہی برابر بھی اس کے برابر محبت نہیں ہے۔ کس محبت کی دعویٰ کر رہے ہو آپ لوگ؟ اور ان کے اٹھ کے تم لوگ احمدیوں کے اوپر ان کا کچھ بھی ایمان ہے، کچھ بھی ایمان ہے، پر ان کے منہ سے کبھی ہم نے محمد والے محمد کے لیے گالیاں نہیں سنی ہیں، کبھی گالیاں نہیں سنی ہیں جو گالی آپ لوگوں سے دی جاتی ہیں۔ او علی شیر او پلیا گل سن لے۔ جعفری بھائی ایک منٹ، آپ دیکھیں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی یا حضرت ابو بکر صدیق سلام اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ ان کا احترام کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے ایمان کا حصہ ہوگا۔ میری خوشی اس میں او نہیں، نہیں ایمان کیسے لینے دیں کچھ نہیں، صحاب تھے۔ او بات سنو میرا بھائی، کوئی تھوڑی علم کی بات کر لیتے ہیں، چھوڑو یہ آنکھوں کے تارے ہیں، بس ٹھیک ہے، معافی دے دو، چھوڑ دو۔ نہیں تو اس بات پہ قائم رہے نا پھر آپ۔ میں کہاں پہ کروں، میں تو شیخین کے متعلق یہ طلب بھائی سے پوچھ لیں۔ آ جائیں بڑی اسکرین پہ آ جائیں علیم بھائی، بڑی چھوڑ اسکرین دیں پہ آ آپ، جائیں آپ۔ یہ صحابہ ہیں، صحابہ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ والے کے باپ پیتا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کا میں پیتا تھا ایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ ایک میں میرے ٹیسٹ صحابہ رکے ستاروں علی کے شیر مانند بھائی، ہیں۔ کس علی شیر بھائی رکے، ابھی آپ کو میں ایک ٹیسٹ کرواتا ہوں، دیکھیے گا ابھی علی مولا کہنے پہ اور یہ یزید کو لعنتی کہنے پہ ابھی دیکھیے گا ذرا کیا ہوتا ہے۔ جی راجوت بھائی آپ نیچے گالیاں نکال رہے ہیں، ابھی اوپر آئے ہاں میں گالیاں نکال رہا ہوں۔ شیعہ آج جیت گئے ہیں جناب، شیعوں نے جناب میدان مار لیا ہے، مرزائی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ چلیں آپ گالیاں نکالیں جی، میں نے کیا کیا؟ راج صاحب گالیاں نکالیں۔ جعفری تم چپ کرو، منافق چپ کرو۔ گالی نکال بھائی، گالی نکالو۔ نہیں میں کیوں گالی نکالوں، میری بات سنو۔ نیچے گالی نکالی آج شیعہ جیت گئے، آج شیعوں کا ایمان جناب زبردست نمبر 1 ہو گیا۔ مرزائی تمہاری تعریف کر رہے ہیں اور تمہارے شیعہ اور مرزائی بائی، شیعہ اور مرزائی بائی بائی، نیا نعرہ آ گیا مارکیٹ میں۔ مرزائی تیرے بھرا ہو گئے نہیں ہونا، خوش ہو جا۔ رکو میں نے یہ بتاؤ کہ میری غلطی کیا ہے کہ میں نے مجھے اپنے نیچے گندی گالیاں نکال رہے ہو کہ میں نے یزید کو لعنتی کا یہ غلطی ہے، میں اس کو 100 بار کہوں گا، روزانہ کہوں گا۔ تو میں بھی کہوں گا، اور یزید کو میں بھی کہوں گا، پھر کیا ہو گیا؟
फिर नहीं फिर क्या हो गाली गया? क्यों निकाल रहे हो नीचे? मैं तुम्हें गाली इसलिए निकाल रहा हूं, तुम मुनाफिक हो अलीम, तुम ये लो, नंबर 1 चलो। मुनाफिक हो। ठीक है? हो गया। और और तुम बताओ। तुम जो ना, तुम मेरी मैं बात म्यूट सुनो, लगाता तुम, हूँ, आप बोलते रहो, आप गालियां मैं खुल के कहूंगा दिल करो, जो पूरा मरज़ई दिल और लगाओ। शिये बाई बाई, ठीक है? मरज़ई ठीक और चलिए ठीक शिये हो गया जी, कबूल हो राफी गया बाई जनाब। बाई। ठीक हो जाफरी गया। तुम जाफरी चुप साहब, मैं और करो, आप भाई भाई हैं मुनाफिक अब। तुम चुप करो। जी जाफरी दुरुस्त भाई, हो गया जी, ठीक बिल्कुल। है? हाँ, जी और बिल्कुल। बोल रहे हैं कि मरज़ई नहीं और बोलना? जाफरी, और बोल रहे हैं? मरज़ई और शिये बाई बाई, आज पता चल गया दोनों के मौले एक, ठीक है? पता चल गया दोनों का। अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली, वो मौला अली जी सबके बेशक। हैं, ठीक है? तुमने अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वो नहीं रजिस्टर आपके नहीं नहीं है, करवाए हुए क्योंकि अपने नाम पे? आपको तकलीफ हो रही है ना राजपूत, नहीं, आपको मुझे अच्छा कोई चलो तकलीफ हो नारा रही है। तकलीफ नहीं, लगाओ मौला, अली अल्हम्दुलिल्लाह। मौला, चलो अली मौला का नारा लगाओ। अली मौला, अली मौला जिंदाबाद, बस ये अली रोजाना मौला लगाना है, 100 दफा तबीयत जिंदा। ठीक हो जाएगी। नहीं, नारा मौला अली के रोजाना दुश्मन पर लगाना है, लानत डालें, 100 दफा चले। लगाना है, तबीयत बहुत सब अच्छी होगी। सहाबा जिंदाबाद, सब मैंने कहा सहाबा। जी आपने अली मौला का नारा लगाए 100 दफा रोज, तबीयत आपकी फ्रेश हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। माशाल्लाह। यही मेरी दवाई करके आप ना, अलीम, जब तुम भी आपको अलीम, याद आए आप दिलों ये के कुफ्र करना, धुल जाएंगे जी, मौला, अल्हम्दुलिल्लाह, दिल रोशन हो जाएंगे। बिल्कुल दिल बिल्कुल। ठीक होगा। माविया ते नाल लानत भी भेजनी है, उस तो बगैर और शट अप ओए, और शट अप ओए, तकी हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मां, ठीक है? तू चुप कर, तू अब ये तो अपनी वो बात बकवास है ना बंद कि कर। एक तरफ मैं फिरौन को भी कह दूं कि रजी चल अल्लाह, और एक तरफ माविया मूसा दी नहीं अलैहिस्सलाम तेनू को भी। अजम हो रही तो यजीद ते लानत भेज दिया कर। इसी तरह पे मैं चलो। उसके बारे में कोई बात ही अली नहीं मौला करना 10 दफा चाहता। कहो, मुझे कहो, मैं 100 दफा चलिए कहता हूँ, बस अली ठीक। मौला कहो 10 दफा, चलो करो, मैं ओए, तुम मेरा टीचर है? तबीयत बेहतर होगी। मैं कह रहा हूँ, नहीं, तू मेरा टीचर है। मैं गारंटी करता हूँ तबीयत बेहतर होगी। मैं मुझे को मैं यजीद पे लानत करना दिलों को शिफा बख्शता है। मुझे कहे, राजपूत मैं साहब। कहता हूँ 100 दफा कहता हूँ, कहो मुझे, मैं 100 दफा कहता हूँ, आप 10 दफा कहे, सुबह शाम के तबीयत को तू फाका मेरा होगा, टीचर है, तू दिल मेरा रोशन टीचर है। होगा, ठंड नहीं, पड़ेगी, बेहतर फील तू करेंगे। मेरा टीचर है, तू मेरा टीचर है। तो आप तो गंदी गालियां निकालते हो, ये आपको किसने सिखाया है? मेरी बात सुनो, तुम मेरे टीचर हो। आप हाँ, मैं कह रहा हूँ, मुझे क्या राजपूत भाई आप नीचे जाएं। राजपूत भाई मैं क्या कह रहा हूँ, नीचे जाएं। बुरा अली कुछ क्या नाम है, अली भाई आप मेरी ब्राड में हैं जो नीचे बैठे हुए हैं, इनको बताते हैं कि क्या बोला उन्होंने। मिर्जा साहब ने बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। चलेगी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जाफरी भाई, आज दुनिया ने देख लिया, नतारा हो गया है। और अलीम अहमद का कसूर पता क्या है कि मैं फौरन तौर पे वो यजीद की, मुझे मेरा ब्लड प्रेशर आई हुआ है, मैंने कहा कि ये जो हरकत है ना ये वाली कि यजीद वलीउल्लाह मुझसे तो बर्दाश्त हुई। अब मेरे ख्याल में मैं आपको अपना भाई समझता हूँ, मैं आपको अपना जी भाई जी बिल्कुल, समझता हूँ। आप भाई हैं मेरे, बिल्कुल आप भाई हैं मेरे। जितनी आपकी तकलीफ इज्जत है, मेरी इज्जत है जी, जो बिल्कुल। करे, और मुझे कोई अकीदा नहीं चाहिए अली से प्यार करने के लिए। मैं बाखुदा बेशक, खुद से बेशक। कह रहा हूँ ये बात, मुझे कोई अकीदा इसमें तो कोई दो नहीं चाहिए अली मौला से प्यार करने के लिए। और ये जो दिहाड़ीदार है ना, ये जो दिहाड़ीदार रद्द कादियानियत पर काम कर रहे हैं, जिनके कोई अपने सियासी मफादात या दिहाड़ीदार हैं, ये अगर मेरे साथ कुफ्र पर भी बैठ के बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो इनके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आ जाएं, शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब के शागिर्द हैं बहुत बड़े, वो भी कुफ्र पर बात नहीं कर सकेंगे। ये मैं बड़े वसूख से बात कर रहा हूँ। तो ये काफिर की दुकानें बंद कर दो, अल्लाह ताला से डरो और अपने ईमान की फिक्र करो, जिसकी कुरान पाक ने तालीम दी है। अब इनके कुरान जो पाक में एक दोस्त है नजफ भाई बड़ा सेंसिबल बंदा है। एक नजफ, वो आता है, कभी कभी मुलाकात होती है, वो भी काम करता रहता है कादियानियत के ऊपर। कादियानी भाई हैं मेरे यार, चलो मैं फिर जिनो इंस गवाह रहना, भाई हैं मेरे ये, चलो भाई पट आप लो मेरे जरा भाई संपटना। हैं। लेकिन मैंने उससे भी गवाही दिलाई है। मैं कहा भाई आप बताओ, अब कहोगे यजीद वलीउल्लाह लानती है यजीद, मैं कहूंगा सुबह शाम कहूंगा, बिल्कुल लानत है हर रोज यजीद कहूंगा। पर। दुनिया थू थू कर रही है, लोगों को मार रहे हैं ये पाकिस्तानी सुबह लोग। शाम लगातार मूसलाधार लानत यजीद। बेशुमार कभी ये उठ के मतलब ईसाइयों के घर जला देते हैं, कभी उठते हैं शियों के घर जला देते हैं, कभी उठते हैं तो अहमदियों को। बात सुनिएगा जरा, ये मौका दे जी देंगे। बिस्मिल्लाह ताहिर भाई, जी बिस्मिल्लाह जी। ताहिर भाई, अली मौला अली मौला है कलंदराम मस्ताम आज हमें एक ऐसा बंदा मिला है। रब्बिल आलमीन की कसम, अगर मैं होता ना इसकी जगह तो मैं कलमा पढ़ लेता। मैं बड़े इंसाफ की बात करूंगा, मुझे पढ़ा मैं पढ़ लेता। अभी पढ़ाएं कलमा, नहीं, एक मिनट अलीम भाई देखिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो मैं पढ़ लेता। पता है क्या होती है, इंसान की इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, लेकिन ये इतना बेगैरत इंसान था, इसने इंतहाई नारवा सलूक भी एक तो किया
और दूसरा अपनी बात से फिर गया। बगैर हुब्ब अली खुदा नहीं मिलता, नहीं मिलता, बेशक इबादतों का सिला भी नहीं मिलता, नहीं मिलता, खुदा हरगिज़ के नहीं मिलता। बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली जिसे नहीं अली मिलता नहीं, खुदा नहीं मिलता। नहीं मिलता, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। आवाज नहीं, अल्लाह इज्जत दे आपको। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारी बहन मैं कन्वर्सेशन सुन रही थी। मैं अपने शिया ब्रदर से कुछ कहना चाहूँगी। सबसे ये मेरे ख्याल में इनका नेटवर्क नहीं है ठीक। जी ताहिर अमजद भाई, बहन अब दोबारा रिक्वेस्ट करें, आप वो दोबारा करें, आपके मेरे ख्याल में नेटवर्क का मसला है। जी ताहिर अमजद भाई। जी मैं सुन रहा हूँ। अली मौला के नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद। सलाम उन चेहरों पर जो जिक्र अली सुनकर खिल जाते हैं, और लानत उन लोगों पर जो लोगों को कत्ल करने के पहचान करनी हो, लगाओ मिल के सब नारा अली मौला, हैदरी अली, हैदर मौला। यजीद पर लानत बेशुमार, यजीद मुसलसल यजीद के वकील पर भी लानत, तरफदार पर भी लानत बेशुमार। जो सहाबा की आप खातून अतिया जी, आप हमारी बहन है, आपकी इज्जत है जी। एक आपको बात बताऊं जो मेरी अक्ल है उसके मुताबिक, देखें बहुत सारे मामलात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद ख़राब हुए हैं, उनकी वफ़ात के बाद ख़राब हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो खलीफाओं का खून हुआ है, कत्ल हुए हैं, ये जो निज़ाम बने हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की और हज़रत अली की लड़ाई जंग हुई है, ये सब चीज़ें कुछ ना कुछ हवाला देती हैं। ऐसे ना करें कि सब पाक दामन थे, पर हमें हक नहीं है। अल्लाह आलम बेहतर जानने वाला है। जिसने बुरा किया है अल्लाह उसके साथ बुरा करेगा, जिसने अच्छा किया अल्लाह को जहर दे दिया इन लोगों ने, तो बाकी की किसी की क्या है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारे मामलात खराब हुए हैं, लेकिन मेरा मुंह छोटा है और वो शख्सियतें बहुत बुलंद हैं, बड़ी हैं, और अल्लाह आलम बड़ी दानिशमंदी की बात की आपने। अल्लाह आलम बेहतर जानने वाला है किसने किया, लेकिन किया है, इससे कोई नहीं दूर कह सकता कि कुछ हुआ नहीं है। बहुत कुछ हुआ। कोई नीचे उतारता है, ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है जी? क्या उमर साहब? मैं कह रहा हूँ आपके शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। बंदा ऊपर चढ़ता है फिर नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है। यार मॉडरेटर इन्हें साड़ी साह चाड़िया दे, इन्होंने बांह चाड़ी दी सन के। मेरा सवाल ये ले ले, मेरा सवाल तो सीधा सीधा ताहिर अमजद साहब नाल है। नवा ना कट्टा खोलना, जेडे कट्टे खुले देन उन्हां ते ही गल करना। मैं कहना कि बहुत बड़ा कट्टा खुलिया था एक ना भाई, ना पुराने कट्टियां ते रहना, नवा ना खोलना। ताहिर अमजद साहब ਨੂੰ मैं पूछना है, कल एक बराट उत्ते गए ने और उत्थे एक तस्वीर लगी हुई थी और ये उन्होंने मना करके आए ने कि तस्वीर ना लगाओ। वो मेरे ख्याल मुफ्ती साहब दी होनी है ते नाल आमिर नजीर साहब ना ना लोग डिस्कनेक्ट हो रहे ने, कोई नेटवर्क का मसला है, एक्सेप्ट नहीं हो रही रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट ना करो, एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। मैं चुकना वा तो बंदा डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है जी। ताहिर अमजद साहब को पूछो कल उस बराड़ ते की लैन गए सन। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे साहब? बड़ी गंदी बराड़ दी गल करदे पे हो, बड़ी गंदी बराड़ है यार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा। मलिक साहब माफ कीजिएगा, ये खातून है ताहिर भाई, ये इनसे पूछ लीजिए, क्योंकि फिर यहाँ पे फिर बातें अजीबो गरीब भी हो जाती हैं। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखें, बातें अजीबो गरीब मत करें ना, हम सिर्फ बात करने आए हैं, लड़ाई करने तो नहीं आए ना। गुड यार ये ना, ये 1 सेकंड के बाद डिस्कनेक्ट हो रहा है। ते आपसे गुजारिश है ताहिर अली भाई अपनी ब्रॉड ओपन कर लो। नहीं, मॉडरेटर्स जो हैं वो प्लीज इनको ले लें, और अगर तो नेटवर्क का मसला है, जजेस साहब भी नीचे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ये भी डिस्कनेक्ट हो रही हैं, तो नीचे मैं दबाता रहता हूँ उसको, मैं वो एक्सेप्ट करता रहता हूँ, वो एक्सेप्ट वो आती नहीं है। मैं सिर्फ ये आप आ जाए, दोबारा बात करें, बिल्कुल करें आप अब ठीक है, अब वो शो हो गया है, अब शो हो गई हैं आप। जी प्यारी बहन।
भाई मेरी बात तो सुन ले, आप ऐसे ही मुझे नीचे वो गिरा रहे हैं, क्या बात हो गई? मैं कोई गलत बात थोड़ी ना माफ कर रही कीजिएगा, ये हूँ, मैं नेटवर्क का लड़ने कुछ तो नहीं इशू है आई ना, टिकटॉक की तरफ से। तमीज से बात करूंगी, अपनी बस बात रख रही मेरी हूँ। बहन आपको कोई नहीं अगर ये नीचे कोई लड़ाई उतारा। वाला चैनल है तो मुझे अभी बता दे, मैं नहीं उठी नहीं नहीं चली नहीं जाती ऐसी हूँ। कोई बात नहीं, हम आपको बार नहीं बार नहीं भैणा, बता तुसी रहे गल हैं, करो, बता रहे गल हैं। करो तुसी। जी बताएं। देखिए माशाल्लाह मैं देख रही हूँ यहाँ पे मेरे शिया भाई भी बैठे हैं। मैं अपने तारुफ करा दूं कि मेरा ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, मतलब मैं सुन्नी शिया में नहीं बिलीव करती, मैं मुस्लिम में बिलीव करती हूँ, सब मुसलमान हैं। तो अभी आप लोग जिस तरह बात कर रहे भाई थे मेरी बहन है, ये अहमदी भी मुसलमान है। जो मुसलमान का साहब जो गल तो ले लो पहला। अच्छा अच्छा अच्छा। जो जाफरी भाई, आप मुझे ये कंफर्म तो करें, आप शिया हैं भी कि नहीं है? आपने ये नेम चेंज कर दिया है, वाकई में आप शिया है? अशहदु अल्ला, मैं अब कलमा पढ़ के बता दूं आपको। जी मुझे ये कलमा पढ़ के बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। नहीं ईसा अलैहिस्सलाम तो सामने आना है ना जी, आखिरी तो एक मिनट तलत साहब, एक मिनट ठहर जो, कोई मेरे नाल गल कर रहे नहीं को ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। जाफरी साहब स्पेशलिस्ट है, वो करने दे, वो स्पेशलिस्ट है। जी मेरी बहन शिया कम्युनिटी नाल मेरा ताल्लुक है। अब्बास भाई अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा शिया कम्युनिटी नाल ताल्लुक है, मैं शिया मुसलमान। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह मदद। मैं शिया मुसलमान हूँ मेरी बहन। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि क्या आप अहमदियों को मुसलमान समझते हैं? देखें, मेरे पास भी और किसी भी आलम इस्लाम में भी किसी के पास इस बात का जवाब नहीं है। इस तरह के एक इंसान कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, काफिर को तो मैं कहता हूँ कि वो मानता ही नहीं है, रसूलुल्लाह का इनकार करता है, अल्लाह का करता है, कुरान का करता है। तो जो इंसान कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और ईमान भी रखता हूँ जिन पे तुम रखते हो, तो मैं उसको किस तरह दायरा इस्लाम से निकाल दूँ? उसके साथ मेरी अकायद पर बात सुन लीजिए। नहीं वो आप खत्मे नबूवत के भाई ऐसे नहीं करे ना, हमें आपसे बात करें, आप खत्मे नबूवत का दिफा नहीं करते। जी बात सुन लीजिए, समुंदर में अगर कोई बंदा एक ट्रक गंदगी का फेंकेगा तो उससे समुंदर प्लीत नहीं हो जाता। बात सुन लीजिए, पहले तसल्ली से बात सुनिए फिर आप बात कीजिएगा। ये किसी आलिम साहब से पूछ लेगा, किसी को काफिर कहने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, और दायरा इस्लाम में ये है कि जिसने किसी एक नबी का भी इनकार कर दिया वो काफिर हो गया, जिसने अल्लाह का कर दिया वो रांदा दरगाह हो गया, जिसने कुरान का कर दिया वो भी मलून हो गया। लेकिन अगर कोई तीनों का इनकार नहीं करता इनकार, तो फिर उसको मैं किस तरह कुफर के दायरे में लेकर मैं उनके साथ अकीदे पर बहस कर सकता हूँ? हो सकता है वो गलती पर हूँ या मैं गलती पर हूँ। तो ये एक तरीका है इल्मी तहकीक का, और इल्मी तहकीक करने का ये एक तरीका होता है। मैं शिया की इसलिए रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं कहती हूँ कि वो उनका ये दावा है कि हम वो आले रसूल की डायरेक्ट जो उनकी है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला उनकी जो फैमिली है उनको फॉलो करते हैं, सहाबा को फॉलो नहीं करते। चलें ठीक है, ये इख्तलाफ है, सही है, अपना अपना है। तो अगर आप आले रसूल की फैमिली को फॉलो करते हैं, ठीक है, उधर से आपने सारा कुछ हदीस और सारी इस्लाम को वहाँ से फॉलो कर रहे हैं, सही है, और जो बाकी हैं वो सहाबा को से फॉलो कर रहे हैं, तो क्या तो आपका ये राइट नहीं बनता कि आप खत्म नबूवत को इतनी बड़ी फैमिली से वो आप इस्लाम को ले रहे हैं, तो आपको ये राइट नहीं बनता कि आप खत्म नबूवत को डिफेंड करें? यानी आप कहते हैं कि नबूवत खत्म हो चुकी है, आप नहीं मानते नबूवत खत्म हो गई है? जी बात सुनिए, बात वो नहीं है। मैं तो आज भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ जारी और सारी समझता हूँ, क़यामत तक वो नबी है, मेरे लिए खत्म नहीं हुई। जी तो अहमदी भी समझते हैं ना। मैं आप ये खत्म नबूवत की बात कर, आप का टॉपिक खत्म नबूवत है, अभी आप बात ये कर रही हैं अहमदी को, हर बात में अहमदी लाना जरूरी है। अब उनका टॉपिक ये है कि आप अहमदियों को काफिर क्यों नहीं कहते? पता कर रहे जाफरी भाई, रुकिएगा, अब ये आपसे ये स्टेटमेंट्स लेना चाह रहे हैं और आपके अकीदे नहीं, को मैं अपना टॉपिक भी बता देती हूँ। मेरा टॉपिक ये है, आपका टॉपिक मैं सुनता हूँ। अभी ये कर ही रही हैं, मैं ये टिया बहन को मैं थोड़ा सा सुना है, पहले भी इनको मैं सुना हुआ है, ये अभी करके आपका लिटमस टेस्ट कर रही हैं कि आपका कीदा क्या है, आपको कमरा इम्तिहान में बिठा रही हैं। तो मैंने तो बता दिया उनको जी, वो बात आपने भाई जी बिस्मिल्लाह, बात पे मौका दीजिए। अब इस बात पे जाफरी साहब का ईमान टेस्ट ना करें आप कि वो भी मुसलमान है कि नहीं है। अलीम भाई आप तो लड़ाई करवाते हैं ना, मैं इसलिए आई हूँ, मुझे नहीं पता आप मुसलमानों में आपस में लड़ाई क्यों कराते हैं। तो मेरी भी छोटी ना जाफरी भाई की तरफ से बात और बढ़ा के बना, क्योंकि हम एक कम्युनिटी से हैं। हमारे यहाँ जो है जिसको हम लोग सरखम तस्लीम करते हैं, सूरह तगाबुन की आयत नंबर 8 पे कि अल्लाह लोगो मुझे अल्लाह पे ईमान लाओ, मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तमाम मुसलमान नो
मुसलमानों ने बबाल दौल कहना शुरू कर दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जब तीसरी चीज पे अल्लाह ने ईमान लाने का हुक्म दिया तो लोगों ने उसको ना बबाल दोहल लिया ना दिलों में लिया। हम शिया कौम ने जब आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत से हमें नवाजा। हमारे यहाँ ये मुत्तफिक है ये बात कि जो शख्स इन 3 गवाहियों में से किसी एक गवाही का इनकार करता है या तीनों में से किसी एक गवाही से मुंह फेरता है वो शिर्क करता है, और शिर्क की हरगिज माफ़ी नहीं है, खा वो अल्लाह की वहदानियत पे हो, मेरे रसूल की नबूवत और रिसालत पे हो, या मेरे अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब बादशाह की विलायत और इमामत और सियादत में से हो। जिसमें इसने इनकार किया है ये हमारे यहाँ शाह फ़िक़्ह जाफरिया का मुत्तफिक है कि भाई उसने कुफर किया है, फिसक किया है और शिर्क किया है उसने। अगर ये भी कह दे रसूलुल्लाह नबी नहीं थे तो अलीम भाई और तलत भाई दोनों पर मैं लानत करके उठूंगा। आपको वो असल में नबी ये जो वो तो नबी मानते हैं, लेकिन वो ओ बतियब है ना। अब चलती मशीन में हाथ ना दे। जाफरी भाई मैं आपका जवाब देता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल नबी हैं, नबी और खातमुन नबिय्यीन हैं। बेशक बेशक। और जाफरी भाई सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे बरादर अजीज जब गुफ्तगू करते हैं कादियानी के साथ, उनको मोहर नहीं मिलती खत्म नबूवत के ऊपर कि हमने मोहर क्या लगानी है। हमारे यहाँ तो बड़ी खूबसूरत मोहर है ना। मलिक भाई माज़रत मेरी बात कंप्लीट होने पर जवाब दीजिएगा। हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरत मोहर है जिसके ऊपर हम बबाल तौल कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह सल्लल्लाहु। जी जी मलिक साहब मैं सवाल कर लेता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁਣੀ ਤਖਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ। ਇਹ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੋਹਤਰਮ। ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। नहीं तार साहब मैं सवाल करना ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਪੜਾਓ। मैं हाजिर होना, मैं सुन रहा, मैं थोड़ी देर बाद हाजिर होना। ਪੜਾਓ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਸਵਾਲ। अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ? ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ, ਮੁਕਾਓ ਜੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ। ठीक हो गया होगी गल नहीं। मैं जज्बाती मुसलमान नहीं, मैं एक तालिब इल्म मुसलमान हाँ। मिर्जा साहब से कहते ने मुसलमान को जज्बाती होना पड़ता है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੱਲ। अलीम भाई ये भैन आई देन इन्ना भैन नाल मैनू गल करन दियो। अच्छा मैं जाती हूँ, मैं बस ये कहूंगी अपना तलत भाई रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए। मलिक कैसर साहब ने जो सवाल किया, मलिक कैसर साहब को मैं तसल्ली बख्श जवाब दे दिया। मलिक कैसर साहब जो मेरा सवाल है मेरे को कर लो, मैं तो फौरन अच्छा ठीक है। जो आपने जवाब दिया है वो आपका जवाब मिर्जा साहब से टकरा गया। मिर्जा साहब ने कहा, कर रहा हूँ कि मुझे आपने मुझसे सवाल कर रहे हैं ना। मिर्जा साहब फोत हो चुके हैं। मिर्जा साहब से हाँ, मिर्जा साहब भी हयात नहीं है। मिर्जा साहब हयात होते तो आप जाके उनसे पूछ सकते थे कि उन्होंने किस सियाको सबाक में लिखा है। अभी अब मेरी अलीम भाई एक जुल्म की बात ये है। अलीम भाई देखिए बात को इल्मी कर लें। देखिए कितने जुल्म की बात है कि पूरी जिंदगी एक आम मुसलमान की भी कोशिश ये होती है कि किसी के मुंह से ये कहलवा ले कि बोलो मैं मुसलमान और कलमा पढ़ा ले, रसूल खुदा की नबूवत को मनवा ले। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है बिलखसूस पाकिस्तान के अंदर कि हम किसी को मुसलमान कहने पे सजा दे रहे हैं। लोगों को आज तक ये पता ही नहीं चला। अगर तुम लोग वाकई साहिब इल्म लोग हो, तुम लोगों के पास वाकई कोई तहकीक है तो उनके साथ अकीदे पर बात कर लो। ये कुफर का जो फतवा देते हो, मुझे हमेशा से जब से मैंने ये कानून भी स्टडी किया मुझे इस पर एतराज है। क्योंकि लोग ये तो पाकिस्तान अल्लाह ताला इस नगरी में रहम फरमाए अपना। भाई बोलने नहीं दे रहे, माइक ही ऑफ करें। लोग तो वो जैसे मैं बस चाहूंगी, मैं बस बात करूंगी। मैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। रिस्पेक्ट मेरे ईमान का हिस्सा है। ये नहीं कि मैं खुद करती हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगी तो मैं खारिज हो जाऊंगी। क्योंकि यजीद पे लानत कर दें, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, जिसने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुकसान किया या उनको खत्म करने की कोशिश की, सब पे लानत हो। ठीक है, कहने की बात तो नहीं है। तो बस मैं जाते हुए ये बोलूंगी कि जो रसूल तुम्हें दे दे वो
اسد بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی کوئی بات نہیں، آ جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، صبر کر لیں تھوڑا سا، آ جاتے ہیں. طلت بھائی جی جی سرکار اج تسی میرے نال زیادتی کیتی، مینوں تھلے سٹ کے اوتے نہیں چکیا تسی. میں تو نہیں دادا جی آ گئے نے عباس بھائی. ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਲਮ दादा जी ਜੀ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ? ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਚ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਰਸੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜੇ ਹੋ ਲੈ ਲਵੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਛੜੇ ਰੁਕ ਜਾਵੋ. ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ. ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਅਸ-ਸਲਾਤੁ ਖੈਰੁਮ ਮਿਨਨ ਨੌਮ. ਦੂਜੀ ਬੜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਵੀ. ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ دین ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਆ ਕੇ. ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ؟ جی بے شک درست ہے. میری بہن دے اندر بہت زہر ہے، تھلے لہرے نے کافی کچھ. چلو اللہ تعالیٰ دل ٹھنڈا کرے. امّے صاحبہ کہتی ہیں کہ جعفری صاحب قادیانی ہے. میں نے آپ کو بتایا ان کا حالت یہ کیا ہے. یہ میں مذاق میں بات نہیں کر رہا، سیریس کہہ رہا ہوں. یہ صبح اگر 50 دفعہ لعنت بھیجیں اور پھر 50 دفعہ کہیں یا علی مدد، پھر کہ مولا روشن ہو جائے گا. یہ بڑا بہترین علاج ہے، بہترین دل روشن، طبیعت خوش ہو جائے گی. سٹریس کے لیے بہت اچھی چیز. 50 دفعہ یا علی مدد کرن، پھر 50 دفعہ مافیا تے لعنت بھیجن، پھر 50 بار یا علی مدد کرن، لعنت بھیجن. اگر یہ کرنا میں یہاں کچھ عرض کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو. بسم اللہ میری جان، بسم اللہ. اچھا اب دیکھیں نا، کافر اگر کہنا تو ہر کوئی دوسرے کے لیے کافر ہے. عیسائی کے لیے مسلمان کافر ہے، دیوبندی کے لیے قادری کافی ہے، قادری کے لیے دوسرا تیسرا، شیعہ تو ویسے ہی کافر ہے. اور شیعہ اور قادیانی تو باہر ہے نا میچ سے ویسے ہی. ہاں وہ ویسے ہی کافر ہے. اب کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر ظلم ہے. ظلم کیا ہے؟ ظلم عدل کا متضاد ہے، یعنی جسٹس کا متضاد ہے. اب جس نے عدل نہیں کیا اپنے رسول کے ساتھ، یا جو منصب ہے اس کو اگر، یعنی کہ خدا کا منصب اگر کسی نے کسی کو دے دیا تو وہ ظلم ہو گیا، اور جو ظلم ہو گیا تو وہ کفر ہو گیا. تو خود ہر کوئی اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ ظلم کہاں ہوا ہے. جہاں جہاں ظلم ہوا ہے تو وہاں کفر ہوا ہے. تو ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان ہے. اچھا ڈنگ ڈونگ بھائی، ابھی آپ کو مزید چاہیے سکون؟ جی بھائی حیدری بھائی چاہیے سکون. کل تو وہ یہ جو شاہ ظفر اللہ جی ہے نا، انہوں نے تو کر لو ہسٹری میں سے جو ہے نا باغ فدت ہی غائب کر دیا. اس نے کہا اس طرح کا واقعہ ہی کوئی نہیں ہوا. اب کیا کرو گے؟ جی کربلا غائب ہو گیا، کہہ رہے یہ واقعہ ہی نہیں ہوا. اللہ ہضم کرے اس کو جس نے کھا لیا اس وقت. آپ کیا بولیں؟ ہضم کہاں ہوگا؟ ہضم ہوگا کڑکڑی مائی بوائے فرینڈ. ڈنگ ڈونگ بھائی میری درخواست ہے آپ سے، اگر آپ تصویر ریموو کر دیں اور علمی گفتگو جے ڈنگ ڈونگ نو دیکھنا ہے تو میری آئی ڈی نو بڑا کر دیں. اگر لان تان کرنی ہے اور آپ نے وہ یزید کی حمایت کرنی ہے تو پھر آپ کے لیے پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو نیچے اتار دوں گا اگر آپ نے تصویر نہ اٹھائی. یہ علیم بھائی یہ یعنی کہ چور ساری دنیا کے سامنے چور ثابت ہو گیا، لیکن ایک بندہ کہنے اس نے چوری نہیں کی. جی چلیں. اچھا ایک منٹ سب سنو، سب جو نیچے بیٹھے سب سنو. مجھے بتاؤ آپ لوگ مولا یزید علیہ الصلوۃ والسلام سے کیوں جلتے ہو؟ یہ بتاؤ. تمہاری جاہلیت پہ شاہ جی نے جو آپ کو جواب دیے وہ پسند نہیں آئے آپ کو؟ اپنا حسین علیہ السلام کا دشمن ہونے کے لیے حرامی ہونا شرط ہوتی ہے. ویسے جعفری بھائی ایک منٹ رکیے گا، ابھی آپ کو شاہ جی نے بھی تسلی کروائی ہے، وہ پسند نہیں آئی آپ کو؟ ایک بات سن، اچھا ایک بات سن لینا پلیز معذرت سے. پتہ ہے کیا آج آپ نے جو بروڈ چلایا، ٹو بی آنیسٹ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گیا. کاش آپ میرے سامنے ہوتے نا، میرا جو ہے نا پیر آپ کے کندھوں پر رکھتا کہ بھائی آپ نے کمال کا کام کر دیا.
टिया बाजी जरा ऊपर आइए अब आप कहाँ है टिया बाजी को जगह टिया बनाई काफिर अब इन सुन्नियों से पूछो ना कि अब इन सुन्नियों से पूछो कि किधर है तुम्हारा यजीद रजी अल्लाह ताला ने कहने वाले। अब तुम सुन्नियों के मुंह बंद हो जाते हैं, कहाँ गई तुम्हारी गैरत सुन्नियों? बताता हूँ गैरत हो जाते साथ ही। कुरान करीम ने फरमाया मौला यजीद के बारे में, सुन ले अलीम भाई सुन ले, अब आयत सुन ले मौला यजीद के शान में। अल्लाह फरमाते हैं वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा। तेरे ते लानत हो गया वो जिस टाइम कुरान दिया उस टाइम यजीद लान दिया ही नहीं सी लान दिया। कुरान की आयत के बारे में सी यजीद नहीं सीगा। और यजीद लफ्ज के जो मीनिंग है ना वो कुरान की आयत है, सूरह मरियम की आयत है, सूरह मरियम की आयत है। नहीं लानत ना भेजो कुरान पर। कुरान की एक आयत है, ऊंट पे बैठे हुए ऊंट की रस्सी और पीछे हाँकने वाले पे लानत है, वो कुरान की आयत है। उन पे तो रसूल ने लानत की है ना, उन पे रसूल ने लानत की है। मौला यजीद के शान में अल्लाह फरमाते हैं वयज़ीदुल्लाहु हिदायत याफ्ता वाले लोगों बात सुने तुम्हारा, लेकिन लेकिन ब्रॉड में पता चल गया जाफरी साहब, मैं आपको बड़ा अच्छा इंसान समझता था, मैं क्या मेरे भाई हैं। हरामी है, एक नंबर का हरामी है। चल तू अलीम भाई को अपने खानदान से रिश्ता दे दे, तुम इनको बहुत अच्छा समझ रहे हो, मेरे साथ तो दुश्मनी है तुम्हारी। वैसे मौला यजीद के शान में कोई गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। आज से ना कि टिया बाजी तशरीफ लाए और इनसे बात करनी, आप लोगों ने नहीं बात करनी। पीर मौला यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। नाना मुझे जरा उनसे जरा मौला यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। अच्छा अलीम भाई टिया से बात करेंगे, आप इसको ये फासिक को नीचे उतार दीजिए और इसके इमाम से इसका लानत है, इसको उतार दे अलीम भाई, जज़ाकल्लाह, लानत करें। अच्छा अलीम जाफरी भाई, दो जुमले इधर कहूँगा। ये अलमी है सुन्नी अहले सुन्नत की हजरात के लिए, इनके अकाबर ने भी यही लिखा कि यजीद के हाथों में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार थी और हुसैन नाउज बिल्ला फासिक और फाजिर था। और यही आज इन लोगों के बबाल दोहल यही अपने अकीदे जाहिर करने शुरू हो गए, जो इनके उलमा ने, इनके बड़े अकाबर ने, सुन्नियों ने लिखा है। किधर जाती है सुन्नियों तुम्हारी गैरत? हमारी बारी में आके ये लोग कहते हो इनकी नफी कर दी। एक अर्ज करनी है, देखें जिसकी तरबियत आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हो और हजरत फातिमा ने की हो और हजरत अली ने की हो जी, वो हुसैन बनता है। कभी मैं कहता हूँ उसके ईमान पर शक करने वाला भी काफिर का बच्चा है, फिर खालिदन काफिर का बच्चा है। एक और भाई, और उसके मुकाबले में मलिक भाई एक चीज मैं बताऊं, जिन्होंने उन पे जुल्म किया वो पक्का जहन्नमी और लानती है, ये भी फासिक था, फाजिर था, बेशक। वैसे मलिक भाई एक चीज है, ये अहले सुन्नत का मतलब गुलाम साहब जो थे वो भी तो अहले सुन्नत की थे ना। कौन मतलब गुलाम अहमद कादियानी ना, जी कोई सुन्नी नहीं थे, कोई नहीं थे। जब देखे नबी का मजहब उस वक्त शुरू होता है जब अल्लाह उनसे कलाम करता है। अगर आपने ऐसे मजहब लेने हैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले कौन सा दीन था? कौन सा दीन था? ग़ारे हिरा वो जाते थे कि नहीं? क्या करने जाते थे जी? इबादत करते थे अल्लाह की। कौन सी इबादत करते थे ये बता, कौन सी इबादत करते? माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। ਹੁਣ ਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਉਹ किस डिजाइन दे बन चुके हो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? यार सच्ची है, मैं भी सुनया किस डिजाइन दे बन चुके ने। अच्छा ਇਹ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਖੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਛਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹੁம்ம ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਮੁਹੰਮਦ व अला आले मोहम्मद, मतलब गारे मतलब ਉਹ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫੈਜ਼ਿਆਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
मौला अली के बारे में। मुझे एक मिनट, सबसे बड़ा अरकान तुम्हारे यहाँ दीन में नमाज है। मुझे नमाज का तरीका दो, तुमने अमीर कायनात से लिया। वजू लिया। हमारा सबसे बड़ा काम है वली बनाओ, दिखाओ हमको वली हमारे जैसे कादियानी गिनाओ। ठीक है सरकारी मुसलमान, ठीक है सरकारी मुसलमान, आप अच्छा मेरा सवाल सरकारी मुसलमान का मतलब पता है क्या है मेरे बहनों? सरकारी मुसलमान का मतलब है कि मेरे हम सरकारी मुसलमान हैं, ये बेगैरत मुसलमान है। जरदारी का मुसलमान शेख रशीद। सरकारी मुसलमान का मतलब पता क्या होता है? कादरी सरकारी मुसलमान सरकारी मुसलमान का मतलब है नबी पाक अलैहिस्सलाम सरकार है। बंद करो, मेरे को बंद कर दो, बंद कर दो, मतलब मैंने अपनी लाइफ में जाना है। मतलब आपने उल्टे ले लेकर इसने कहा मुझे सरकारी मुसलमान, मैं नबी पाक मेरी सरकार है। शट अप। मैं कह रहा हूँ आपने अपने दीन का बेड़ा गर्क किए, उल्टे मतलब ले लेकर। तूने गर्क किया यार। मेरे यहाँ मुजद्दिद होते हैं, तेरा खुद को मुजद्दिद कह रहा है, हम वली को मुजद्दिद कहते हैं। तेरा खुद को मिलावट सिखाया आपको यार। आप इमेजिन करो गुलामी अहमद लोगों को पैसे देता कि मुझे मुजद्दिद कहो, मैं मुजद्दिद हूँ। उस्मान साहब का जो है ना करतूत देख लो। वो कह रहे हैं कि उस्मान साहब जो है ना अपने नफ्स के साथ इंसराफ करते थे। तारीख है सर ये तो आप सर देखो कोई भी नबी नहीं है, ये तुम चवले मार रहे ना। यहाँ पर एक कादियानी बन के बैठा है। जबरी कहता है कि कुत्ते की ज़बान पाक होती है। तू तो बैठता है उनके साथ, मुझे बता अगर उन्होंने कुत्ता भी तो सिर्फ ही होगी ना यार। नहीं सुन, कुत्ते की हदीस आई हुई है, जबरील आया नहीं। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही देने ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा आपकी चारपाई के नीचे कुत्ता था। इसी से हिसाब लगा लो तुम। देखिए राम का दुनिया का ऐसा मुसलमान, पहला मुसलमान मुझे मिला जिसको मैंने बताया कि कुत्ते की जुबान पाक प्लीत होती है, तो ये कह रहा है कि इंसान की प्लीत होती है। ये तो इल्म है, अब बाप क्या बंदा करे। मैंने कहा इंसान की प्लीत क्यों है? इंसान की प्लीत क्यों है? बताओ। चलो मैं भी तो पंजाबी हूँ, मैं क्यों नहीं गालियां बकता यार? तो अल्लाह ने पाक बनाई है, तुम किस तरह प्लीत कर सकते हो? यार मुझे वड्डी स्क्रीन पे कर दो प्लीज, मैंने वड्डी स्क्रीन पे कर दो। अल्लाह ने इंसान की जुबान पाक बनाई है, आप किस तरह प्लीत कर रहे हो इसको? ये बताओ। हाँ मैंने वड्डी ते करके छितर मारो। राम की गंगा मैली होगी है, पाप धोते हो। राम की गंगा तब से पाक हो गई है यार। हम हिंदू थे पहले, गंगा मैली थी, अब पाक हो गई है। अब नपाक मेरी नजर में मुझे नपाक समझा के दिखाओ। चले, अगर आपकी नापाक है तो आपको गुस्ल करना चाहिए, और लेकिन यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ये तौफीक बख्शी है कि अगर वो मैं तो महीना जाफरी, मैं तो महीना गुस्ल न करूँ, तेरा अल्लाह महीना मुझे नहीं छोड़ता। कहता है यार तू यार है, आए को मर गई तुसी बढ़ गई। बस ठीक ये पागल है, वो इससे बात नहीं करो। क्या पागल है यार? मेरा घुमंड है वो यार, आपका घुमंड है ना मलकवान, मेरा भी घुमंड है ना। मेरे घुमंड को बीट करो, मुझे क्या पागल है? क्या पागल है वो यार? मैं बात करता है आपसे, इतना पागल है मैं। इतनी गंदी दाढ़ी तो लगता है वही आती है, वही आती है। ये दाढ़ी मैंने कादियानी की तरह रखी है। देख कादियानी यहाँ से बड़ी नहीं करता है, मैंने भी यहाँ से बड़ी नहीं की, लेकिन कादियानी यहाँ से भी बड़ी नहीं करता ना, मैंने यहाँ से बड़ी की है। सारी बातें अपनी जगह पे, पर बड़ी स्क्रीन पे बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। क्या बात है। देखो सर, इंसान के अंदर लानते अंदर पड़ती है, चेहरे पे नहीं। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ही पड़ रही है, तुम्हारे शक्ल में पड़ रही है। मेरा मतलब ये है, मैं दिखने में डिसेबल हो सकता हूँ, गंदा हो सकता हूँ, लेकिन जब बातें करूंगा ना वो मलकवान जैसी हूँ, तो फिर कादियानी क्या मतलब? कादरे मैं एक बात कहूँ, कादरी साहब जिंदाबाद। आप जी बुरा लगे, मुझे बुरा लगने से कोई भी मकसद नहीं। अभी मेरे मुझे काटनी है, तुम सबसे खूबसूरत होगा। अभी बेगम ने मेरे रंग नहीं किया मुझे। कादरे मेरी बात सुनो, मेरी बेगम मुझे रंग करती है, तुम तो नाई के पास जाते हो सालो। 5 मिनट का ये जो गजनी मूवी आपने नहीं देखी है? गजनी मूवी 5 मिनट में सब भूल जाता है आपका। ये तो खुद इसी शीशे के सामने बैठे होते हैं, 5 मिनट रुकता है कभी उधर, घंटा लगा के खुद अपनी दाढ़ी को रंग करके हमारे सामने आके बैठ के हमको चिल्ला मारते हैं। जा तुम क्यों बोल रहे हो? तेरा सवाल नहीं है। पूछो ना गजनी देखी है? तलब मैंने लगता आप गजनी का एक्टर है। मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको और तलत साहब को छोड़ दो, तलत साहब इसके साथ बात करे बस।
हाँ ना तलत भाई बात करें ना यार, मैं सीरियस बात करना चाह रहा, तलत भाई के साथ ये खुश रहे आगे बीच में। तो फिर नहीं, तो फिर बात ये है कि बदतमीजी नहीं कर, नहीं बदतमीजी नहीं करोगे तलत साहब के साथ, बदतमीजी करोगे हम लोग कूदेंगे बीच में। ओ यार मैंने कहा, मैंने तलत से सीरियस बात करनी थी, बीच में खुश रहे आगे, तुम्हें समझ नहीं है, शियों की समझ नहीं है। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੋ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। तलत भाई आप मुझे बताओ यार, आप पाकिस्तान से हो, आप कादियानी हो, आप हम सारे तो एक मुसलमान हैं, आप मुझे काफिर कह रहे हैं, आप कादियानी हो, तुम एक सरकारी साथ लगाया करो, सरकारी मुसलमान। अच्छा यार, ये मेरी नजर में मैं नबी पाक सरकार है कि नहीं है मेरे भाइयों? मैं मुझे मेरे भाइयों 45 बच्चों जिनमें से कुछ हरामदे भी हो गए, लेकिन हम सब की सरकार नबी पाक है कि नहीं है? क्या जरदारी है कि किसी का दमिश्क में तो वो है भाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार नहीं है, वो हमारे मैं अगर बलोची को, मेरे बहनों भाइयों, मैं बलोची को, काले को, गोरे को, नंडे को भाई कह रहा हूँ, किस वजह से? क्योंकि हमारी सरकार नबी पाक है। ये बेगैरत लोग इन्हें क्या पता है? मैंने तो हर बात को अपने मौक़िफ़ में यूज करना है ना। नबी पाक ने ये भी फरमाया है, तुमसे सबसे अच्छा मुसलमान हुआ है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरा इंसान महफूज है। बेशक जिनसे अपना नबी महफूज नहीं रहा, वो मुझको अपने एक दूसरे की ये कहते हैं मुझे गाली मत निकालो, क्योंकि इनको पता है मैं कादियानी हूं तो गाली आने वाली है। आपने तो ऐसे इस्लाम दीन की बात कर रहे हैं जैसे आपके अब्बा का दीन है। ये अल्लाह का दीन है, मेरे बाप का दीन है रे। भाई सुन लो, ये अल्लाह ताला का दीन है। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि दीन में जबर नहीं है, ओपन ऑफर है, जिस मर्जी आए। मेरे कान में, मेरे बहनों भाइयों, मेरे कान में अजान किसने दी थी? मेरे बाप ने। तो मेरे बाप का दीन है। इस तरह ना करें भाई, ठीक है। अरे खुदा की आप इल्मी बात यार, मैं अपने बाप को नबी नहीं कह रहा यार, हमारा विरसा है ये, विरसा जैसे विरसा ठीक है, ये विरसा है, इख्तलाफ रखेंगे, ये विरसा है, आप इख्तलाफ रखें आप, लेकिन ये ना करें कि आपके बाप का। मैं जाफरी से सवाल कर सकता हूँ एक, कि आप विरसा किसे कहते हैं? जमीन जायदाद को, के इल्म को, जो मेरे पास मेरे बाप का है? कोई विरसा नहीं है हमारे पास, मेरे भाई और अल्लाह के रसूल तेरा तो दीन नहीं है। मेरा जाफरी के बारे में पूछा था यार, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तरह ना करें तो मेरा दीन बनेगा। अगर ये इस्लाम से ना खारिज हो जाए। पंजाबी में हमारी तुमने बना लिया इसको। सुने, आप इस्लाम से ना खारिज हो जाए, हमारे भाई हैं, आप हमारे भाइयों के ईमान की फिक्र है, आप इस्लाम से ना। पंजाबी में मिसाल देते हैं, आप रूढ़ी जाती सी, दूए नू मत्ती दिती जाती सी, अपना पता नहीं की हाल होया, सानू काफर काफर कह। एक कादियानी इनकी मिसाल सुन लो कि कुत्ता हड्डी लेके जा रहा है, पीछे भाग रहे हैं, कहते हो खैर तनु अल्लाह लेके क्या मत पूछेंगे। कुत्ता हड्डी लेके जा रहा है, क्या मत लेते। कितनी इल्मी बात कही आपने, माशाल्लाह। और आपने भी जो जुगत मारी है उसका जवाब दिया ना यार। जुगत मारी है। आप मुझे ये बताएं कि आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी समझते हैं? मैं अब समझता हूँ, मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम को पहला नबी भी समझता हूँ, पहला नबी के बाद ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं। फिर तुसी ऐसा करो, तुम्हारे इतने आठ दी लोड नहीं है ब्रांड पे। ये जाफरी को बोले तो यार कुछ बोलना चाह रहे, कहता है ला हौला वला कुव्वत। कहां से हाजी साहब आप ये तो सच आया क्यों है जी? आई लांती शक्ला तो जी, अस्पताल की कौन बोल रहा है साला? तुसी अस्पताल पहुंचो। अच्छा ये अली बोल रहा है, अली बात कर रहा है यार, कुछ पागल समझता है मुझे। दीन का नक्शा ही बिगाड़ देता है काजी साहब ने, क्योंकि पहले नबी भी हो यार, मेरा एक जमात से तल्लक है ना भाई, मालिक अमान मेरी जमात का क्यों इनकार करते हो? तल्लक है, पहले नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी नबी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये तो जितने भी लानती यहाँ बैठे उन सबका दीनी मान है, मुझे कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहा है? अल्लाह ताला भाई, जो भौंकने की उस जब खंजीर आ जाए तो फिर कुत्ते को भौंकना पड़ता है ना यार। काम की बात करो ना, क्यों ये जानी बातें कर रहे हो? खंजीरों के ऊपर लानत कर रहा है, गाली तो नहीं दी है। मलिक साहब इनको नीचे उतार दीजिए, माफी मांग लें इनसे। अली भाई देखो, ये अली भाई मेरे इंसान की कमजोरी के पीछे पड़ा हुआ है, तुम सब लोग मेरी इंसानी कमजोरी के पीछे पड़े हुए हो, यही बात है ना? ये तुम्हारा दीनी ईमान है? नहीं, आपके ईमान की कमजोरी के मुताबिक फिक्रमंद है कि आप कहीं ईमान तो जाफरी, ईमान तो मेरा अहले सुन्नत वल जमात है ना यार, पूरी जमात है, गौस पाक है, ख्वाजा गरीब नवाज, इसीलिए नाम मुकम्मल है ना। इनसे पूछो शाह हुसैन क्या है, ये हमारा कलाम है। शाह हुसैन शक्ल से नहीं लग रहा, तुम्हारी शक्ल तो नहीं लग रही शाह हुसैन। यार वो मेरी शक्ल के ऊपर क्यों जा रहे हो? अच्छा AK-47 आपका ईमान नामुकम्मल है, आपको फिक्र करनी चाहिए, अपनी इस्लाह कीजिए। मैं आपको इंतहाई आजिज़ी से कह रहा हूं। AK-47 तो नहीं बोल सकता, ये अली बोला। नहीं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप अपने ईमान की फिक्र कीजिए और इस्लाह कीजिए अपनी। ये इस तरह की बातें ना करें की बात कर रहे हो, मेरी जमात की बात कर रहे हो। नहीं, मैं पहला नबी भी रसूल खुदा, आखिरी नबी भी, बाकियों को आपको पता है, एक नबी का भी नबी फिर देखो अल्लाह पाक ने बाकी नबी क्यों भेजे?
آپ کو پاگل تو میں نظر آ رہا ہوں نا، لیکن آپ میری بات کر رہے ہو کہ میری جماعت کی بات کر رہے ہو کہ ہم سب کو بدلیں گے؟ آپ اس پہ قائم نہ ہو جائیں، دیکھیں آپ غلط بات کر رہے ہیں قاضی صاحب۔ نہیں، اب ملک عوان کو بولنے دو نا یار، میں آپ سے نہیں بات کر رہا جعفری، آپ کو علم نہیں، عقل نہیں ہے۔ اچھا چلیں، آپ کو چلیں، آپ تانے مارتے ہو نا انسان کو، یہ بھی مارا لیکن اس کا صفحہ ہمارے یہ۔ مگیمبو صاحب، آپ کے ایمان کی فکر مجھے اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ میرے مسلمان بھائی ہیں، اس طرح بات نہیں لیکن آپ کرتے میرے جیسا شیعہ آپ- بھائی ہے نا، فرق یہ ہے، افسوس یہ ہے۔ چلو ملک، دیکھیں قرآن پاک میں شیعہ کا فرقہ تو ملتا ہے، سنت کا نہیں ملتا ویسے، پتہ ہے کا آپ فرقہ کو؟ مجھے نہیں ملتا۔ ہاں آپ آگے چلے جاؤ، یہ تو آپ کی علمی اور عقلی استطاعت ہے۔ یار ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آج مہذب کون ہے، آج سکون والا مذہب کون شیعہ ہے۔ ہی ہیں، شیعہ شیعہ مذہب ہے، یہ میرے صحابہ کو ماں بہن کر دی، ابو بکر کو مانتے صحابہ نہیں۔ کون سے صحابہ ہے تمہارا؟ سلمان فارسی کا کبھی نام لیا؟ ابو ذر غفاری کا لیا؟ کون سے صحابہ ہے تمہارا؟ ہم ان صحابہ کو کون سے صحابہ کا نام لیا تم؟ ایک منٹ بھائی رکو بھائی، جی بسم اللہ۔ ایک منٹ میں بات کرتا ہوں۔ جس کو میرا نبی اور اللہ پاک جنت جن کی مشتاق ہے، ان صحابہ کا کبھی نام لیا آپ لوگوں نے؟ نہیں لیا بھائی۔ کون سا لیا کبھی؟ سلمان فارسی کا، عمار یاسر کا نام لیا؟ سلیمان فارسی رضی کا نام کون بتا رہے؟ کون آپ لوگوں کی زبان سے لیا کبھی؟ ہمارے امام احمد بن حنبل نے ان کی روایت۔ تمہارا امام تم نے کبھی لیا؟ تم تو یزید کو مان رہے ہو۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کو نور ثابت کرتے ہیں، ایک روایت ہے ان کی۔ کون؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا البیت سے۔ ہماری سب کی ماں ام المؤمنین پہلے تشریح نہیں ہے۔ کتاب نہیں مانتے ہو۔ رام قادری بات دیکھو کرو۔ ملک عوان، میں شیعہ سے بحث نہیں کر سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ شیعہ سے بات ہو جائے کسی کا کہے گا میں تیری کتاب مانتا ہی نہیں ہوں۔ ہماری مسلمانوں کی ماں ام المؤمنین، ہماری کتاب کو یہ جوتے ہیں، ہمارے اپنے امام ہیں نا۔ کرنی ہے، میں نے ملک عوان سے باتیں کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں جی برادران، کیا حال سب دا؟ تے گزارش ہے بھائی جی جڑے بھی ایتھے براڈ تے آئے ہو، بڑی سونی براڈ چلدی، اینو پلیز مچھی منڈی نہ بناؤ، واری واری گل کرو۔ یار مجھے صرف ملک عوان سے بات کرنی ہے، باقی سب شیعہ سے میں بات کرتا رہتا ہوں اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے شیعہ سے بات کرنے کا۔ نہیں تو شیعہ جو ہیں وہ انسان نہیں ہے یار، ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، میں ابھی ان کی یار میں کس کو گالی کس نے دی؟ کس کو گالی دی؟ خاموشی سے دیکھ رہا ہوں، صرف آپ بول رہے ہیں، باقی بہت مہذب طریقے سے سن رہے ہیں۔ یہ نبی کو جڑا ہے وہ دنیا دی بہت اکثریت نہیں منتی، تے ادا مطلب ہے ساری دنیا تباہ کر دیو گے۔ کس نے تباہ کی ہے بھائی؟ دنیا چ رہندے ہو؟ کس نے تباہ کیا ہے؟ کس نے تباہ کیا یار؟ ایک ارب 80 کروڑ مسلمان کی دنیا تباہ ہو گئی ہے، ہم سنیوں کی دنیا تباہ ہو گئی ہے۔ پوچھ رہا ہوں نا، میں پوچھ رہا ہوں نا۔ ایک منٹ بھائی، ایک منٹ سر بھائی جان، ایک منٹ میری بات سن لیں، ایک منٹ سنیں، میں تو ابھی بات شروع کی ہے، کیا ہو گیا؟ میں بھی 1 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، مجھے بھی بولنے دو، میں آپ سے پہلے بیٹھا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ بولتے رہے، میں چپ کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن طریقے سے بات چپ کر رہے ہیں آپ چپ کر۔ دیکھو بھائی، رام قادری ایک بندہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ 20 بندے الجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی، ہمیشہ اصول کی بنیاد پہ بات ہوتی ہے۔ ایک بندہ بات کرے، وہ جواب دے اور وہ سوال کرے، آپ جواب دیں۔ یہ کون سا طریقہ ہوا کہ آ کر بات کرتے ہیں اور وہ بیچارہ کسی موضوع پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرے اور آپ کے پیٹوں میں مروڑے پڑنا شروع ہو جاتی ہیں؟ میرے مطلب یہ کون سا طریقہ ہوا؟ یہ بیزاد نے مجھے پہلے تانا مارا تھا آتے ساتھ ہی کہ تم نے صحابہ کو گالی نکالنے والے کو 3 دفعہ کافر لکھا ہوا ہے اور باقی اہل بیت کے دشمنوں کے بارے میں کچھ لکھا۔ میں نے کلیئرلی یزیدی کافر لکھا۔ یزیدی میں وہ سارے لوگ آتے ہیں جو اہل البیت کے ہی دشمن ہیں۔ میرے کہاں سے دشمن ہے؟ وہ میرے ماں باپ کے۔ یزیدی اہل بیت کے دشمن ہے، قادیانی کافر، اس کے بارے میں مجھے تانا مارا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور کوفہ کے اندر بلایا اور 10,000 خط لکھ کر بلایا تھا، اور وہی یزیدی وہی لوگ ہیں، وہی کافر ہیں جنہوں نے بلا کر دھوکہ دیا اور وہاں پہ مارا تھا۔ مارنے کے بعد چرپائی اٹھا کر بھاگ جاتے ہیں۔ اے دادا آپ خاموش ہو جاتے ہو، تو قادیانیوں کی جا کر بغل میں بیٹھ، دادا قادیانیوں کی جا کر بغل میں بیٹھ، دادا تو بات نہ کر، قادیانیوں کی بغل میں جا کر۔ اے بندے کو پوچھو کہ جنہوں نے بلایا سی انہوں نے بعد جو قتل کروایا پر کدے کہن تے قتل کروایا، کیوں کروایا ہے؟ کدی انہوں نے دسیا کنے آرڈر دیتا، کی وجہ بڑی؟ کدی انہوں نے دسیا؟ آر کے منہ چک کے ادھی سٹوری دس دینے نے۔ میرے بہنوں بھائیو، دیکھو میرا اور شیعہ کا جو مذہب ہے نا وہ تقریباً سیم ہے۔ نبی پاک کے بارے میں مذہب ہے، باقی کسی کے بارے میں مذہب نہیں ہے۔ باقی سب سے ہم نے مودت رکھی ہے۔
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਕਤ ਕਰੋਗੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। मेरी बात ਕਿਸੇ सुनो, ਨੂੰ ये ਆਪਣੇ अल्लाह की ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਕੀ मेरी ਖਿਆਲ बात ਹੈ सुनो। ਤਲਤ जी? जवाब दियो। मैं दूं? पी रही है मैनू लगता। नहीं आप तलक से मांग रहे हो तो मैं कहां से बात करूं? तू दे रहा। हाँ हूं दस ना तू दे तू दे चल तू दे मैं तेरा। देखिए मेरे बहनों भाइयों, मैं ऐसी बात करूंगा जो समझ आएगी। अल्लाह की सुन्नत है कि जो बच्चा बंदा हरामी होगा ना उसकी नस्ल में वो हराम ट्रांसफर करेगा। आज कितने तो साल गुजर गए, आज देख लो किस में माँ बहन की गालियां हैं और किस में से मैंने भी पेज लगाता हूँ, मैं भी बंदर तमाशा करता हूँ। कोई गवाही दे के मैं माँ बहन करता हूँ, जो मेरा दुश्मन है कभी नहीं की। लोगों से इस्लाम की बातें करता हूँ, हदीस की रिवायत देता हूँ, कुरान की, ना कि ये कुतहाना मचाया करता हूँ। ओए मैं तुझसे जो बात ये सबूत है मेरा हक होने का। आज 14 सदियों के बाद मेरे यहाँ वली ही वली पैदा हो रहे, इनके यहाँ दज्जाल ही दज्जाल पैदा हो रहे। इनके हक की निशानी ये है कि दज्जाल पैदा कर रहे हैं। तू गल कीती यजीद दी एक बंदे आए हैं सैयद जवाद अहमद नकवी, ये उनको गालियां निकालते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि शिया में दज्जाल बहुत पैदा हुए, सुन्नियों में वली बहुत पैदा हुए। बाबा बुल्ले शाह का कौन इनकार करता है? मियां मोहम्मद बख्श का कौन इनकार करेगा? यजीद का दफा कर रहा है। यजीद अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का कौन? ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब कैसे इतने बड़े वली बन गए? सर ये हमारा फिरका, हमारी अहले सुन्नत वल जमात है ही नहीं जेड़ा सैयद सर हक की निशानी तलत भाई कुरान के हक होने की निशानी है कि वो वली पैदा करता है, क़यामत तक वली पैदा करता रहेगा। शिया दज्जाल पैदा करता रहा, हम वली पैदा करते रहे। और वली सैयद की आल में से होता है, तुम पता नहीं चूर चमारों को। अच्छा यानी कि अगर देखो तलत भाई, अगर सैयद की आल में से होकर वो इस काबिल ही नहीं है कि किसी को वली बना सके। और भाईजान सैयद की आल दे विच होएगा, वो तो मुझे पता है ना, वो तो तलत को भी पता है। हम में सैयद मशहूर है हमारे यार, जितने भी हमारे खानकाई वली नहीं बन सकता ना बड़े अदद भाई, शक्तियां गल कर सकता अदद भाई, जितने भी हमारे यहाँ फुकरा गुजरे ना, बड़े बड़े फकीर गुजरे। पता नहीं अली भाई यार आप देखो, आप पाकिस्तान को जानते हो, मैं ये अनोखी बात नहीं कर रहा, जगह जगह दस्तगाही निजाम था पहले। मेरी बात सुन, कहीं किसी भी मजार पे आपने कभी पंजा देखा है मेरे बहनों भाइयों? यानी कि जितने भी मजार है वो शियों के मजार नहीं है, वो सुन्नियों के मजार है। वो वली वली बाबे ही है ना, उनकी औलाद रह रही है आज। सब सैयद ने और सैयद दी आल चो ने, वही तो मजहब की गल आप ही तक लेना। सैयद दी आल चो तो सुन्नियों की बात कर रहे हो कि शिया की बात कर रहे हो? मैं सुन्नी की बात कर रहे हैं, आप शिया की बात कर रहे हो। और भाईजान मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी वली हुए हैं सैयद है, 3 कबार हैं। हाँ तो सैयद यार, सैयद सैयद है, एक सैयद है, एक सैयद है, बात करता है वो सैयद होता है। एक सैयद है, एक तू अपने से बनाई जा रहा है यार। हम सुन्नी है ना यार, कोई भी एक सैयद है ना, वो पादरी मोहम्मद को बुलाए। ओ यार पादरी एक सैयद है, 3 कबार हैं। सर्च कर कुरान में किसी जगह पे दिखा यार। मेरे दो इमाम हसन हुसैन इस्लाम है यार, ये लोग ना। अच्छा बात सुनो ना यार, एक कादरी शहबाज कलंदर किधर किसके हैं? सुन्नियों के हैं कि शियों के हैं? मेरे तो थे अलम तेरा अब्बा ला के आया थे। क्या पता तेरा अब्बे जिक्र लगाया हो। अलम दा लब्बे जवाब अलम दा। सर आप प्लीज सर्च कीजिए सही शहबाज कलंदर को, वो कादरी हैं। अच्छा ओ सुभान अल्लाह, नौज बिल्लाह, नौज तेरी शक्ल दिला ना, तेरी शक्ल दिला ना, तेरी शक्ल दे अल्लाह ना, तेरी इस अल्लाह व तआला मैंने तेरे जमन थे। ओ यार ये चवल लोग, मैंने भी गाली दी है। शक्ल ही तेरी कुत्ते नहीं है हुआ। ओ यार मैंने भी गलत हो गलीज बात की। तुम जब से यार ढंग वाली बात कौन सी की है? सबको गालियां देते तो तुम्हें इज्जत देकर यहाँ पे बड़ी यार मुझे उतार दो, तो फिर भी गालियों के ऊपर गालियां दे रहे हो भाई। तल्लत काफिर मुझे उतार दो, उसको ना बस उतार दो, दलील के साथ बात कर, लेवल ही नहीं है, दलील के साथ बात कर, दलील के साथ। तुम्हारा लेवल ही नहीं है, पहले लेवल बनाओ फिर आगे आप 60 बंदे सुनने वाले हो, लेवल बनाओ, सर्च कीजिए दाता अली ज्वेलरीज की। अच्छा उधर अलम किसने लगाया? उधर अलम किसने लगाया? यार मुझे उतार दो प्लीज, बात करने दो, सारे बात कर रहे हैं। तू कुत्ता है। देखो 1 2 3 4 5 6 शिया है यार कादियानी,
अच्छा रुको एक सेकंड रुके भाई, मुझे बात कर रहे हैं, मुझे बात करना है। अभी तो आप खुद बात कर रहे हैं, एक बंदे से भी बात कर सकते थे, आप हंस लें पहले, फिर नहीं वो नीचे कुछ यार मुझे गालियां बक रहे थे, मैं तो ये कैसे अलीम भाई मुझे काइंडली इस बंदे से मैं अकेला बात करता हूँ, मुझे इससे बात करने दें। मैं आप सबसे गुजारिश है जी, मेरे इससे 1 to 1 करवाएं जरा। सारे म्यूट में जा रहे हैं, सिर्फ आप बात करें, आपके बीच में कोई नहीं बोलेगा, आप सिर्फ एक बात चले ठीक है, म्यूट करें सारे, जरा म्यूट करें। बात करना चाहता हूँ, ठीक है, चल कादरी सीधा पतराओ जरा, किसी सीधा पतराओ सखी बोलने दे, ऐसे ना करें भाई। मेरे एक बात सुनो, जिस तरह कादरी साहब ने कैमरा ऑन किया हुआ, इस तरह से रुक जाए, मुझे एक फिक्रा बोलने दे। मैं तब से खामोश हूँ, आप लोगों की बात सुन रहा हूँ। कैमरा ऑन करता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं करता। कादरी साहब, वो आपके 3 दोस्त, गुजारिश है, जिस तरह कादरी ने कैमरा ऑन किया सब कैमरा ऑन कर दो। कादरी साहब, पहली बात तो ये है कि आप परेशान ना हो। राम कादरी साहब, तू अपनी निक्की दा रिश्ता मैनू देना, मैं बड़ा चीसा बच्चा, तू ले जा, मैं नहीं लेना कैमरा तेनू दा के। अब मुझे बोलने दे यार, रिश्ता के बच्चे गाली नहीं दे, एक मिनट बात करने दे। कंजर के बच्चे, हरामी के बच्चे गाली नहीं दे। मैं तेरी गुंड में यार खुदा का नाम है, प्लीज यार छोड़ दो ना, काम की बात करते हैं ना यार, यार काम की बात करते हैं ना, गाली नहीं दो। यजीदों के बच्चे जी अगर बोलेंगे मैं नीचे उतार दूंगा आपको, अब अगर बोलेंगे मैं आपको नीचे उतारूंगा। रुके भाई, आपने अभी ये बात की कि ये 6 लोग हैं, इनको उतार दें, जो इनको जो नए आए हैं इनको उतार दें, सिर्फ मैं सिर्फ 1 to 1 बात होगी, मेरी बात सुन लें। अब राम कादरी साहब, आप परेशान ना हो, आप लोग 3 लोग बैठे हुए हैं और 3 ही वो लोग हैं। आप मर्जी बात करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तमीज का दामन रखें। पहले थोड़ा सा ना ये क्लियर कर लें। आप लोग मेरा नंबर है, वो भी 3 है, ठीक है जी। अगली बात अलीम भाई मेरी गुजारिश है, मुझे मेरे सारे भाई मेरे साथ एग्री करेंगे, मेरा इसके साथ राम कादरी से के साथ 1 to 1 करवा दे सिर्फ, क्योंकि इसने अपनी ब्राड से ये उतार देता है, हमारी ब्राड पे ये आता नहीं, भाग जाता है। खुदा की कसम, मैं पीर को हमेशा आखिर में उतारता हूँ जब मेरी इनको, क्योंकि मैंने आधा पौना घंटा बात करने, कहते हैं जी रब्बा तेरी रात मुक गई। ठीक है, अब सिर्फ ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जाफरी साहब अकेले थे, और सारे लोग जाफरी साहब से बात कर रहे थे। जाफरी साहब बिल्कुल नहीं घबरा रहे थे, आप क्यों घबरा रहे हैं कादरी साहब? देखो तलतवान भाई, क्या नाम है साहब, एक मिनट बात सुनो मेरी। हेलो भाई राम कादरी। अच्छा, बारी 1 to 1 बात होगी, मैं सबको नीचे उतार रहा हूँ। नहीं, सबसे पहले मैंने बात करने दो, वहां से आके बात करनी है, फिर आपसे बात करूंगा। आप बोलो आपकी बात क्या है, रुक जाए, मुझे पता है आपकी बात का, बात होने दो। मलक साहब, आपने अगर तो बात को इंटरप्ट करना है तो मेहरबानी करनी है। मैं चाह रहा हूँ पीर साहब की और कादरी साहब की 1 to 1 बात हो जाए जी। मलिक साहब बोले जी, आप बोल रहे हैं फिक्रा जी। मैं राम कादरी साहब आपसे ये कह रहा हूँ, और ये पीर साहब से भी ये कह रहा हूँ, ये कादियानियों की ब्रांड है। आपके अपना जो कचरा डजंट मैटर कादियानी में। अच्छा, मुझे मलिक अवान एक बात करनी है, जो मर्जी नीचे म्यूट करवा दें, नीचे कमेंट्स देखें आप अलीम भाई, नीचे म्यूट करें इनको। मैं भी म्यूट कर रहा हूँ। देखो सर, मुझे मलिक अवान से एक बात करनी है, ये जो अहले तशरीफ वाले, इसके बाद कचरा फैलाने वाले ना, इनका आलम ये देख लो कि मेरा हर किसी के साथ एक ही दावा है कि मेरा मिशन है, मेरी कचरा अभी कचरा देखते हैं ना। अच्छा बात तो यार, मैं मलिक अवान यार, तुमने पिछले 15 मिनटों से तुम लोगों ने कुछ खड़ा कर रहे हो, मैं कुछ भी बोला नहीं बोला, मुझे भी मलिक अवान से बात करो, उसके बाद बकवास फिर नहीं कर, किसी को टारगेट नहीं कर, बकवास नहीं कर। मैं उससे बात कर रहा हूँ, मैं उधर देख रहा हूँ, तेरी तरफ नहीं देख रहा रे, मैं इधर नहीं देख रहा, मैं उधर देख रहा। चले, अब 2 मिनट का टाइम है, आप 2 यार पहले मुझे मलिक अवान से बात करें देना प्लीज। वो अवे हैं। वो यार उसे कान तो है ना साला, मैं ड्राइव करते हुए मेरे कान काम करते हैं। मैं कह रहा हूँ जी, वो अवे हैं। यार अवे छोड़ दो, मैं दुनिया के लिए बात कर रहा, 70 बंदे बैठे उनके, तो उनको इसके जरिए मैं उनसे बात कर रहा। ये बात कि मैं जितने भी बंदे आएंगे ना, मेरी एक बात समझ लो, मेरा मिशन है कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से जितनी भी मेरी औकात हुई मैं उसके अंदर बात करूंगा, यानी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का तारुफ। तो ये जो शिया पीपल अभी मुझसे बात करने जा रहे हैं ना, इनमें और मुझ में सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम के हवाले से एक कांट है कि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को उस तरह जात नूर नहीं मानते जिस तरह मैं मानता हूँ। अब ये नीचे गुड्डी गुट्टा मेरे साथ खेलेंगे, मेरे साथ इस्लाम की बात करो। इस्लाम की बात होने लगी है, इस्लाम। ये अलीम भाई मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा, आपने डिसाइड करना कि आपने इनसे जवाब लेके मुझे देना कि ये जवाब मुकम्मल है या नहीं। सर आपने फरिश्ता 100% टू द पॉइंट।